جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائیو انشاءاللہ سب بھائی تشریف لائیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، یہ اماد الاسلام تبلیغی جماعت کا ایک شخص ہے جسے شہرت کی بہت زیادہ خواہش ہے، معلوم ہوتا ہے. میری بھی اس سے کافی مرتبہ پہلے بات ہوئی ہے. اس نے جناب یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس کو مرزا صاحب نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے کہ مفتیان کرام پریشان نہ ہوں. تو اماد الاسلام صاحب نے پھر مرزا صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ میری ویڈیو جو انہوں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی، اور میں نے آپ کو دکھایا اماد الاسلام جو ہے وہ مرزا صاحب سے ملنے بھی جاتے ہیں. تو مفتیان کرام پریشان نہ ہوں. کوئی بھی سنجیدہ مسلمان پریشان ہوگا، کیونکہ مرزا کی جو تبلیغ ہے اس سے نوجوان جو ہیں وہ گستاخ بن رہے ہیں. خدا کے گستاخ بن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے گستاخ بن رہے ہیں، صحابہ کے گستاخ بن رہے ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ بن رہے ہیں، اماموں کے گستاخ بن رہے ہیں. تو بڑوں کا جب ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا تو ہر بندہ ظاہر پریشان ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو نبی کا گستاخ بن جائے. میں بھی آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. وہ مرزا کا چیلا ہے. یہ دیکھیں. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. نعوذ باللہ. تینوں میرے کو آندے کو 10-12 سال ہو گئے نے. میں شاگرد ہاں جدوں تسی کر ہوں میں اپنی دکان الحمدللہ پا لئی ہے. میرا تہاڈے نال کوئی سلوک کدی برا نہیں رہا. ایک گال کٹ دو. ایک گال کٹ دو یعنی کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دے دو. کہ یہ تبلیغ جب ہوگی تو ظاہر ہر بندہ پریشان ہوگا. آپ نے دیکھا کہ یہ مرزا کا چیلا ہے صابر کریمی. اس نے اپنے چینل پر بتایا کہ میں کس طرح مرزا صاحب سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، کس طرح وہاں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہوں. اور اس نے جو گستاخیاں کی ہیں یہ تو مرتد ہو گیا. اور تقریباً 66,000 سے زیادہ مرزا کے فالورز جو ہے نا اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. اس کو کہہ رہے تم نے جا کے لوگوں سے انٹرویو لیے جناب، جس طرح ہمارے بابا جی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ 1 ارب بھی کسی کو دے دو وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین گستاخی نہیں کرے گا. تم نے جا کے تجربات کی ہیں. تو کیا یہ تجربہ کرنا یہ کفر نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی کو کہنا کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تم نبی علیہ السلام کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا مسلمان اس کی تو زبان کٹ جائے. اور یہ تبلیغ کس نے کی ہے؟ مرزا نے کی ہے. لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ گستاخی کرو. تو اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو لوگ پریشان ہوں گے. خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے مرزا؟ کہتا ہے کہ جنت میں نہیں خدا ہوں گے. اور یہ بھی اپنی ویڈیوز میں اس نے کہا اور ہم نے دکھایا ہے. کہتا ہے جب آپ خدا کی توحید بیان کریں گے تو نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی توحید ہے جس سے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو؟ تو اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے. جنہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، جس نے اس نے ویڈیو بنائی، اور ان کے سارے کفر کا وبال مرزا پر پڑے گا. تو ظاہر مفتیان کرام کیوں پریشان نہ ہوں؟ اب یہ جو اماد الاسلام صاحب ہیں یہ میرے سے کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں 1.5-2 سال پہلے، جب مرزا صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی مولانا طارق جمیل صاحب سے. اور مرزا نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ جناب میں نے جو ہے وہ مرزا صاحب سے ملنا ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا. تو اس پر اسی اماد الاسلام نے مجھے بتایا کہ سارا مرزا جھوٹ بول رہا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ کہتا کہ میں نے میسج دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ملاقات طارق جمیل صاحب سے کرا دیتا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے ویڈیو بنا کے دیں تاکہ میں اپنے چینل پر دکھاؤں کہ جناب مرزا صاحب کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نے وعدہ کیا تھا اماد الاسلام نے
जनाब मैं आपको कल वीडियो जो है वो भेजूँगा। तो अगले दिन उसने कहा नहीं जी मेरे अमीर जो मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने तो अपनी एक वीडियो में लोगों को बता दिया है। कहते नहीं फिर मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ। फिर उसने मुझे ऑडियो भेजी और मैंने सब दोस्तों को सुनाई भी थी, आपको अगर याद होगा। उसमें इसने बताया कि मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है। तो इमादुल इस्लाम साहब आप इस खुशफहमी में न रहें कि जनाब मैं इत्तेहादी उम्मत कर रहा हूँ। इत्तेहादी उम्मत उनसे होती है जो कुछ उनके अंदर अदब हो, कुछ अखलाक हो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तौहीन कर रहा है, खुदा की तौहीन कर रहा है, सहाबा की तौहीन कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहता है कि उनको अगर काफिर भी कहे तो वो जो है वो काफिर कहने वाला बंदा काफिर नहीं होगा। और फिर ये भी बताता है कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत जो है वो कुरान से साबित है, और आपके सहाबियत का इनकार करने वाला जो है वो काफिर होगा। फिर ये भी कहता है कि जनाब वो काफिर नहीं होंगे, हाँ मुझे काफिर कहने वाला जो है वो काफिर हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इमादुल इस्लाम साहब आप खुशफहमी में न रहें, क्योंकि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती, याद रखना। कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं रहती, और जो हद से बढ़ जाएँ वो राह रास्त पर नहीं आया करते। आप अपने ईमान की फ़िक्र करें और अपने लोगों के ईमान की फ़िक्र करें। और आपने जो मुझे कहा था कि जनाब कि मेरे अमीर साहब मना कर रहे हैं इसलिए मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई, तो अब आपके अमीर साहब ने आपको इजाज़त दे दी है। कभी आप शियों से मिलने जाते हैं और बार बार आप मिर्ज़े से मिलने जाते हैं और आप कहते हैं मैं इनके लिए दुआएं करता हूं। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको ज़्यादा जो है ना वो शौक़ चढ़ा है शोहरत का। अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला आपको सीधे राह पे ले आए। अब इसी वीडियो में फिर मिर्ज़ा ने अपना क्लिप जो है वो जोड़ा और सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि क्या कुरान पाक पढ़ने से कोई बंदा गुमराह हो जाता है। तो वही पुराना झूठ, जनाब ये डायरेक्ट कुरान पढ़ने से मना करते हैं, ये तो यही यहूदी नुमा है, कोई अगर यहूदी भी हमें कहे तो हम उसको ये कर दें। कितना बड़ा झूठा है। दावत इस्लामी जो अहले सुन्नत की बहुत मकबूल तरीन तहरीक है, उसका जो 72 मदनी इनामात उसमें सर फहरिस्त ये है कि आप रोज़ाना आप 3 आयात की तिलावत करेंगे, तर्जमा पढ़ेंगे और तफसीर पढ़ेंगे। और अहले सुन्नत के मोतबर उलमा स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब आपने जो है कुरान मजीद की तिलावत करनी है, आपने तफसीर पढ़नी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर पहले भी इसने कई झूठ बोले हैं और इतना बड़ा झूठा है कि इन झूठों को बार बार जो है वो फैलाता है। ये देखें, ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। दुनिया के किसी मजहब का मानने वाला मौलवी, चाहे हिंदुओं का हो पंडित, चाहे वो ज्यूज और क्रिश्चियंस के पादरी हो, चाहे सिखों के गुरु हो, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी किताबें डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। सिर्फ ये मुसलमानों का मौलवी है जो कहता है कुरान बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। देखें झूठ बोल रहा है। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि आप पढ़ें। देखें जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी सवरेगी, कब्र भी सवरेगी, नज़ा का आलम भी सवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब हो और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो। इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज पढ़ लो और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तौज़ीह के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। मैं आप सबसे पूछता हूँ, हाथ मत उठाइएगा, आप में से कितने इतने कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने पूरे कुरान को तर्जमे से पढ़ा है। देखें ये तबलीग कर रहे हैं कि आपने कुरान पाक को आप तर्जुमे से पढ़ें। हमारे अहले सुन्नत के उलमा कह रहे हैं कि आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। और इतनी बार ये झूठ बोल चुका मिर्ज़ा, ये झूठा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, कि ये कहते हैं आप तर्जुमे से न पढ़ें आप गुमराह हो जाएंगे। हाँ ये गुमराह हो जाता है, हालांकि ये इसने कुरान पाक कई मरतबा पढ़ाया है, लेकिन ख़ुद गुमराह कैसे हुआ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये अपनी वीडियोज़ में कहा है कि जो उनकी सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। और इसने ख़ुद ये फिर फतवा दिया है कि हाँ अगर कोई उनकी सहाबियत का इनकार करे तो काफिर नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी वीडियो आपको दिखाई थी, लेकिन मज़ीद आपको दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये ख़ुद कुरान का मुनकर हो रहा है और ये किस तरह गुमराह हो रहा है। इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला
अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। काफिर, आपने देखिए देखा सुना, यानी डायरेक्ट कहा कि वो आपकी सहाबियत का इनकार करने वाला कौन है जी? काफिर है। अब मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह ये कुरान का मुनकिर हो गया है और ये इस्लाम से कैसे फिर गया है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि दूसरों को तो तबलीग कर रहा है कि यार डायरेक्ट पढ़ें। ये जो कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान पढ़ने वाला जो है वो गुमराह हो जाता है, ये सारा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब ये ख़ुद कैसे देखें गुमराह हो गया है ये देखें। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूँ कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीज़ें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीज़ों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा, इस्लाम से नहीं निकलेगा भाई। या उमर वलीउल्लाह या उस्मान वलीउल्लाह या अली वली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करेगा तो काफिर नहीं होगा। यानी कि उनका इनकार करना, उनकी ज़ात का इनकार करना, उनके सहाबी होने का इनकार करना है। तो पहले आपने ख़ुद कुरान पाक की आयत पढ़ के, सूरह तौबा की आयत नंबर 40 पढ़ के आपने साबित किया कि उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर होगा। अब आप कितने गुमराह हो गए हैं, कुरान पढ़ के आप इतने गुमराह हो गए हैं कि आप कहते हैं कि जनाब उनका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा। और अपने बारे में क्या कहता है, ये भी हमें वीडियोज़ दिखाई हैं। कहते हैं हम कादियानी को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। भाई तेरा जिक्र है कुरान पाक में, तेरा इनकार करने वाला कोई काफिर होगा? कहता है हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम उन्हें काफिर कहते हैं कादियानियों को। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि सहाबी को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा, और उस सहाबी के बारे में जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। तो ये किस तरह आवाम को धोखे देते हैं। हमारे उलमा फरमाते कुरान पढ़ें, आप तर्जमा पढ़ें। दावत इस्लामी के निसाब में शामिल है 72 मदरी इनामात में कि आप रोज़ाना जो है तर्जमा पढ़ें, 3 आयत की तफसीर तर्जमा पढ़ें। लेकिन इसने इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार झूठ बोला है, और जितनी बार झूठ बोलेगा उतनी बार इस पर अल्लाह की लानत बरसेंगी, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को कुरान से दूर कर रहा है। कुरान का नाम लेके ख़ुद कुरान का मुनकिर बन गया है। सबूत हमने आपको दिखाएं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। इसने कहा उसका इनकार करने वाला काफिर है, और फिर उसका इनकार करने वाला ख़ुद बन गया, ख़ुद कुरान का मुनकिर बन गया, और इसका फतवा इसी पर फिट आया, ख़ुद ये काफिर बन गया।